2x plus 3y minus 5. This is our line 1. And what is the condition for parallel? For parallel lines, we have the slope must be equal. So because of that, we can say these two equations are parallel. Equal, then that is parallel. If slope product is minus 1, that are perpendicular. So in the same way as we did here, what we did here, two lines are given. So we took that two lines and we know the slope is nothing but the coefficient of x divided by coefficient of y. x के साथ जो टर्म रहेगा कांस्टेंट वो और y के साथ जो है वो डिवीजन में लिखेंगे माइनस के साथ -2/3 और सेकंड लाइन में वही किया हमने x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट माइनस के साथ -a/b so -4/6 that is -2/3. So as these two came equal, so these two lines we said as parallel. So in the same way, if suppose the equations are given to us and we want to check out that whether these two lines are perpendicular or not, we have to just look out the product. So अगर product हमारे पास -1 आ गया, then we can say these two lines are perpendicular. So do the same for this equation, this question. If two lines are given, we want to prove this. Prove that these two lines are perpendicular to each other. Perpendicular. So that is same way, slope of the first line, slope of the second line. If the product is coming -1, then that is, so in this way. Suppose first line is having this, so the slope will be x coefficient by y coefficient minus के साथ. So minus a by b means -3/4. This is the first slope. Second equation is this one. So a by b. B is here -21, a is 28. So minus a by b. B minus है. So minus minus cancel. Now this is if we are taking this 3, 7 3 the 21, 7 4 the 28. So 4/3 आ रहा है. So this is the slope of the second line. This is the slope of the first line. दोनों को प्रोडक्ट हमको चेक करना है. We want to check out whether these two lines are perpendicular or not. Means we have to check out the product. First term is -3/4 and this is 4/3. 3 3 get cancelled, 4 4 get cancelled, -1 is there. So because of this, these two lines are perpendicular. I am explaining. Whatever equation is given, उसका हमने slope find out किए. उसका slope हमको मिला 7/5. हमारे पास रिजल्ट है कि जो भी इक्वेशन है ये पॉइंट से पास हो रही है वो परपेंडिकुलर है. तो उसका जो भी इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर है मतलब m1 into m2 -1 रहेगा. तो एक स्लोप आपको अगर पता है तो दूसरा स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हैं. m1 आपने रख दिए यहाँ पे 7/5, उसको ये साइड लेके गए डिनोमिनेटर में हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 7/5 मतलब -5/7 हो जाएगा m2. अब हमारे पास दूसरी लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप है और उसका पॉइंट है, कौन से पॉइंट से पास हो रही. तो हमने नंबर ऑफ वेज देखे थे कि इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है. तो उसमें एक वे ये था कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, अगर हमारे पास स्लोप है और पॉइंट है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो अब स्लोप है और पॉइंट है तो मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करके बोलो कौन सी इक्वेशन आ रही है. स्लोप पॉइंट फॉर्म याद है ना. So tell me. Okay, look out. स्लोप है हमारे पास और पॉइंट है -5/7 वाला. So we'll just put up y minus y1 as y1 क्या है 5, x1 क्या है 4. So x minus x1. So -5/7 is slope and this one. So इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 into y minus 5 and -5 into this one. So just open this bracket 7y minus 35, 7 5 is 35 and -5x plus minus plus हो जाएगा 5 4 is 20. So -5x को ये साइड लेकर आओ या फिर ये 7y को ये साइड लेकर आओ. तो -5x को अगर ये साइड ला लेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 20 को ये साइड लेकर आएंगे तो -20 हो जाएगा. So 5x plus 7y minus 35 minus 20. So that is -55. So 5x plus 7y minus 55 is equal to 0. So this is the equation of line which is perpendicular to our given equation.
सो व्हाट वी डिड, हमने परपेंडिकुलर कंडीशन फाइंड आउट करके दूसरा स्लोप फाइंड आउट किए अगर पॉइंट गिवन है तो, और उसके बेसिस पे स्लोप पॉइंट फॉर्म यूटिलाइज किए और उससे हमको इक्वेशन मिल गई। ठीक है, समझ में आ गया ये। एज वी डिड इन दिस प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या गिवन था, लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट परपेंडिकुलर टू दिस। तो हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करके दूसरा स्लोप फाइंड आउट करे और ये पॉइंट और ये स्लोप को यूज करके स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया। सो सेम मैनर में हमको अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू, तो पैरेलल की कंडीशन यूज करके स्लोप फाइंड आउट करेंगे और स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो टेल मी व्हाट इक्वेशन यू विल गेट। करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द गिवन इक्वेशन। So slope of the given equation minus a by b same. So a is 4 and b is minus 1. So minus a, that is minus 4 by minus 1, 4. And we know that condition for parallel is what? Slope जो भी रहेगा इसका equal रहेगा, m1 m2 equal. So m2 is also 4. So slope is 4 and the point is 2 minus 3. ये point slope point form use करेंगे. From the slope point form, y minus y1. y1 is what? Minus 3, x1 is 2. So 4x minus x1, that is 2. So now y plus 3 and this 4 into x minus 2. 4x minus 8. 4 into 2, 8. So y plus 3 को ये साइड ला लेंगे, तो 4x minus y और ये 3 इधर आके minus 3 हो जाएगा, minus 8 minus 3. So the equation what we are getting, which is parallel to our given equation, is 4x minus y minus 11. Got? So any distance between any specific point and specific line. Suppose we have any point x1, y1 and general standard equation of line ax plus by plus c equals to 0. Then the perpendicular distance between this point and this line. इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट वी हैव टू टेक मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ ax1 ये लाइन और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, आपने क्या करना है, ये x को रिप्लेस कर देंगे ये x1 की वैल्यू से और ये y को रिप्लेस कर देंगे ये y1 की वैल्यू से। सो ax1 यहाँ पे जो भी रहेगा पॉइंट ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर और यहाँ जो कोएफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर। So in this way we can find out the distance between any specific point and the line. ठीक है, ये समझ में आ गया? How to find out the distance between perpendicular distance specifically between any specific point and general line. Same. So here a into x1 plus b into y1 plus c एक नंबर मिल जाएगा आपको 3 into 3 4 into 4 minus 5 divided by 3 square plus 4 square. Yes, what you are getting? This way. ax1 plus by1 plus c means 3 into 3 plus 4 into 4 minus 5 divided by a square plus b square means 3 square plus 4 square. So if you simplify the numerator, so this is what 3 into 3 9 plus 4 into 4 16 minus 5 divided by 3 square plus 4 square means 9 plus 16. So the numerator is what is 25 minus 5. So that is 20 divided by square root of 25, that is 5 and 5 4 is 20. So this modulus is 4. अब यहाँ पे कभी कुछ सिचुएशन में क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी या फिर जो भी आएगी तो भी पॉजिटिव ही लेना है हमको, क्योंकि डिस्टेंस हम कब कैसे कैलकुलेट करते, पॉजिटिव में ही कैलकुलेट करते, इसलिए डिस्टेंस और द लेंथ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए ये मॉड आपको फाइनल में अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कंसेप्ट? सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 4x प्लस 8 3y माइनस 12। तो ये 3y माइनस 12 को ये साइड ला लेंगे, 4x माइनस 3y प्लस 12, माइनस 12 इधर आके 12 हो जाएगा। सो 4x माइनस 3y प्लस 20। सो a का वैल्यू हमारे पास 4 है, b का वैल्यू माइनस 3, c वैल्यू है 20 और x1 y1 जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज माइनस 3 माइनस 4
फिर ये फॉर्मूला में हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये पॉइंट से ये इक्वेशन का डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ फाइंड आउट करना है हमको. So ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. A is 4, 4 into minus 3, b is minus 3, and this y1 is minus 4. Minus 3 into minus 4, c is 20. Or a square means 4 square, b square means minus 3 square. So yes, 4 3 is a minus 12 and 3 into 4. ये दोनों माइनस में है तो प्लस आएगा. ये minus 3 into minus 4 plus 12. प्लस 20. ये -12 प्लस 12 कैंसल, और ये स्क्वायर रूट में 16 प्लस 9 मीन्स 25. उसका स्क्वायर रूट हमको पता है 5. So 20 by 5 again 4. So in this way we can find out the perpendicular distance from any point and any equation. So simple, आपको अगर ये फॉर्मूला याद रह गया, ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square, you can easily find out the perpendicular distance from this point. तो अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक पॉइंट बचा हुआ है, वो भी हम कवर कर लेंगे, तो ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा. सो थोड़ा सा दिस इज द वे, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ax plus by plus c1, यहाँ पे c1 खाली कांस्टेंट डिफरेंट रहेगा, एंड ax plus by plus c2, सिर्फ c2 डिफरेंट रहेगा. Then the distance between two parallel line will be c2 minus c1, या फिर c1 c2 minus c1 divided by square root of a square plus b square. So पहले हम जो सेम लाइन है उसका ले लेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट लाइन है उसका एक ले लेंगे. So find the distance between these two lines. अब यहाँ पे देखो a और b सेम है क्या, दोनों के x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम है दोनों में. हाँ, तो अब खाली क्या डिफरेंट है, व्हाट इज डिफरेंट हियर, c. So c is different, so just put up the value of c and c1 and c2 in the formula, you will get the value. Tell me what is the value you are getting here. So here a and b are same, so no need to worry about a and b. a is 3, b is -1. दोनों में यूनिक होना जरूरी है, अगर नहीं है तो कैसे बनाएंगे अभी बताऊंगा मैं. And c1 is different, 7, c2 is 16. So just put up the value in the formula, c2 minus c1, that is 16 minus c1, 7, or square root of a square plus b square. A is 3, b is -1, so a square b square, that is 3 square is 9, b square is -1. So under root of 10, 16 minus 7, 9. तो अब यहाँ पे निगेटिव कुछ भी नहीं है, so the value is still 9 by root 10. So this is straightforward only. अगर दो लाइन पैरेलल गिवन है यहाँ पे, ये अभी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो भी हम चेक कर सकते हैं कि दो लाइन पैरेलल है या नहीं. कैसे चेक कर सकते हैं, बस उनका स्लोप अगर सेम आ गया तो हम उसको पैरेलल बोलेंगे, राइट. सो इन द सिमिलर वे, इफ हमारे पास जो लाइंस गिवन है अगर डिफरेंट है तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे हम. ये सबको समझ में आ गया ना. What is the value of distance between these two parallel lines? This is 9 by root 10. Okay, now these two equations. अब यहाँ पे a और b देखो डिफरेंट है, right? a is in the first equation is what, 3, and in the second equation a is 6. In the first equation b is 4, and in the second equation b is 8. So these a and b are different. So सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, a और b को कॉमन बनाना पड़ेगा. So that you can make with the help of just by observing the relation. अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर देखो क्या है, 3 है और सेकंड में 6 है, और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, को 2 से मल्टीप्लाई करें. हाँ, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो. दोनों मेथड से कर सकते हैं आप, कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा. हमारा मेन गोल क्या है, व्हाट इज अवर मेन गोल, आवर मेन गोल इज टू मेक a एंड b सेम. a एंड b हमको सेम करना है. सो
अभी इसके ऊपर अगर आपको कुछ डाउट है तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन भी ले लेंगे। ठीक है, अभी शायद टाइम हमारा कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन ये एक चैप्टर हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा दूसरा भी हम चैप्टर ऐसे ही फास्ट थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, वो भी इजी है जिस तरह ये ज्योमेट्री इजी था। और फिर थोड़ा सा रिवीजन, आप जो भी डाउट है अपने डाउट्स और क्वेश्चंस बाकी है वो निकाल के रखते जाओ, फिर 2-4 जो लेक्चर लास्ट के बचे वो कवर कर लो। हाँ हाँ, ये जो पॉइंट्स है आपको कवर करने हैं ना, वो पॉइंट्स आप निकाल के रखो। तो जैसा ही हमारा मेंसुरेशन कंप्लीट होगा वो भी जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद के लेक्चर्स में हम जो आपको डाउट्स और जो पॉइंट्स क्लियर करने हैं, रिवाइज करने हैं, वो सब हम देखेंगे। हाँ, इस चैप्टर का मिड पॉइंट वाला बताया नहीं आपने। मिड पॉइंट क्या? अच्छा, मिड पॉइंट का डिस्टेंस वो आपने स्कूल में पढ़ा था ना, उसमें कुछ और है नहीं, वो बताना है क्या आपको? डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट, ठीक है, आपको वो बताना है तो मैं बाद में बता देता हूँ। ये वैसा स्कूल में आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मिड पॉइंट, ये आपने पढ़ा था, इसलिए मैंने उसको स्किप किया था। अभी नई नई चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दिया। अगर वो पॉइंट आपको कवर करना है तो वो भी मैं ले लूँगा, लेकिन बाकी जो नया नया कंसेप्ट था ये मैंने कवर कर लिया। कुछ आपका स्कूल का भी प्री रिक्वेस्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन को 2 से भी डिवाइड करेंगे तो चलेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, अभी फिर हम स्टॉप करते हैं लेक्चर, ऑलरेडी हमारा टाइम एक्स्ट्रा हो गया। और असाइनमेंट के भी क्वेश्चंस एज पर हमारे पास जैसा टाइम रिक्वायरमेंट है, या फिर अलग से एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो देख लेंगे, ठीक है। ओके, सो स्टॉप करते हैं। हाँ, अटेंडेंस ले लिया हूँ मैं। हाँ जी जी, ले लिया हूँ अटेंडेंस। ठीक है, लेफ्ट हो जाओ।